This is All India Radio. Welcome to the business news program Money Matters. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, बिजनेस न्यूज मनी मैटर्स में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम शेयर बाजार, कारोबार और अर्थ जगत की ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आइए शुरू करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से। Sensex and Nifty slipped marginally in sync with losses in global equity markets in intraday trade. Rupee weakens to 74 rupees and 80 paise against the US dollar in afternoon deal, and gold futures fell to trade at 46,700 rupees per 10 grams. And let's have a look at our top story. Sensex and Nifty today fell marginally in sync with losses in the global equity market. Sensex at the Bombay Stock Exchange lost 56 points or 0.11% to trade at 49,690. Nifty at the National Stock Exchange slipped 21 points or 0.14% to 14,852. The mid-cap index at the BSE was trading 0.09%, while the BSE small cap index climbed 0.56%. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार कारोबार में दोपहर में $1 की तुलना में रुपया 20 पैसे कमजोर हुआ, 74 रुपए 80 पैसे के स्तर पर आ गया। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक 0.25% बढ़कर 92.29 पर पहुंच गया। हम खबरों पर टिप्पणी के लिए ऑनलाइन आमंत्रित करना चाहेंगे जाने माने बाजार विशेषज्ञ पुनीत जैन को। पुनीत, बुलेटिन में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज। आइए हम समझना चाहेंगे आपसे, बाजार में लगातार हम देख रहे हैं कि एक दो सत्र में बढ़त, तो फिर उसके बाद गिरावट और फिर उसके बाद अगले दिन बढ़त, यानी एक दिन गिरावट एक दिन बढ़त। क्या क्रम दिखा रहा है बाजार में ये चलन? मनोज, आपने सही कहा। अभी बाजार जो है वो थोड़ा नैरो रेंज में लेकिन वॉलेटिलिटी के साथ मूव कर रहा है, और खासतौर से हमने ये देखा है कि जो ये नैरो मूवमेंट है ये इंडेक्स में स्टॉक्स में ज्यादा है। यदि आप नजर डालें मिड कैप्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स पर, तो वहां हमने अच्छी बढ़त देखी है। तो मुझे लगता है कि ये मार्केट में कंसोलिडेशन होकर के नया ट्रेंड एक मार्केट बना रही है। आप जानते हैं, साथ में चिंताएं हैं कुछ पेंडेमिक को लेकर, कोरोना वायरस के स्प्रेड को लेकर। ये सब मिलजुल कर कुछ हद तक वहां पर प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन है, बट मुझे लगता है कि मार्केट की जो ब्रेड्थ है, यानी जो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं, एंड इट शोज मार्केट हैज स्ट्रेंथ। Puneet, as we speak, the market has declined by 134 points, which is really not all that much. If you look at the Sensex count at 49,612, we were talking about the seasonal effect earlier, before the 31st of March. Do you expect the market to bounce back now next week after this last half an hour of trade before trade close at 3:30? See, usually markets are quite positive in the months of April and first half of May. Secondly, what we have seen is that after the RBI policy, it is quite clear that RBI is now embarking on some sort of quantitative easing, QE, in India also, which will increase liquidity going forward. 15th April, we have the first operation, the so-called GSAP operation on 15th April. So I expect liquidity to improve in Indian markets, and therefore I expect markets to remain robust at least for next 3-4 weeks. We also expect the earnings results to be declared, starting with Wipro on April 15. We saw the IT index, in fact, be part of the top gainers, which included Tech Mahindra as well. Then you have HDFC Bank on April 18. How do you expect the fourth quarterly results to pan out for companies? So Arjun, what we expect is that fourth quarter numbers will be quite impressive for companies, because the GDP print was also very good for this quarter, and I think companies were recovering quite impressively in that quarter. So I expect that to happen. In fact, if you look at the market today, it is down largely because of the decline in private sector banking stocks. In fact, PSU banking stocks are higher, but the bank index, the bank Nifty, is down by 300 odd points. Is dragging the markets down, but the broader market, the other parts of the market, which is cyclicals, metals, IT, they're all doing very well. पुनीत, हम जो पिछले कई सत्रों में ये चलन देख रहे हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में छोटी और मझोली कंपनियों का, यानी जो बीएसई मिड कैप है और स्मॉल कैप है, उसका प्रदर्शन कई बार अच्छा रहा है, बेहतर रहा है। ये क्या दर्शाता है?
देखिए मनोज जी, जब भी इकोनॉमी की दशा बेहतर होती है तो हमने देखा है कि जो अर्निंग्स है उसका असर ज्यादा इंप्रूवमेंट है वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज को होता है। लार्ज कैप कंपनीज क्योंकि बहुत बड़ी कंपनीज हैं, रोबस्ट होती हैं, तो उनके ऊपर डिक्लाइन का फर्क भी कम होता है और जब इंक्रीज होती है इकोनॉमी में तब भी उनको फायदा कम होता है। तो सेंसेक्स ही दर्शा रहा है कि आने वाले समय में जो मीडियम एंड स्मॉल कंपनीज हैं उनकी जो अर्निंग्स है वो बेहतर होने की काफी उम्मीद है। What about VIX? In fact, it came down by almost 2% in trade today on the sub-20 region. How do you expect VIX to be next week? So Arjun, you're right. I mean, VIX is right now below 20. It is 19.8 right now. And it shows, like we discussed earlier, because of it represents a fear index. I think people are kind of feeling comfortable with the current market valuations. They don't expect the markets to fall very sharply, and therefore the VIX is down. That is the message of the VIX. So right now, if you were to ask me, the VIX tells me that markets are not likely to fall very sharply, at least in the near future. That's what the VIX says. पुनीत, रुपए के यानी पिछले कई सत्रों में यदि हम देखें तो लगातार कमजोर हो रहा है। आज भी 20 पैसे ये नीचे आया है, 74 रुपए 80 पैसे के स्तर पर आया। लगातार गिरावट के पीछे कोई खास वजह? हाँ बिल्कुल मनोज जी, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करी और उन्हें GSAP यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम उन्होंने अनाउंस किया, 1 लाख करोड़ से ऊपर का प्रोग्राम है, तो ये एक एक्स्ट्रा लिक्विडिटी मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करेगा। ये आप कह सकते हैं एक प्रकार का भारतीय वर्जन है क्वांटिटेटिव ईजिंग का। और इसी वजह से क्योंकि मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जो है आने वाले समय में वो बढ़ जाती है और उसी वजह से हमने देखा है करेंसी में डिक्लाइन आया है। तो पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ दिस मॉनेटरी ईजिंग, एक्स्ट्रा मॉनेटरी ईजिंग बाय RBI, हम रुपये में थोड़ी गिरावट दिख रहे हैं और उसी का ये मुख्य कारण है। आइए अब चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां कुल मिलाकर आज गिरावट देखने को मिल रही है। चीन में मुद्रास्फीति बढ़ने संबंधी खबर के बाद निवेशकों में ये धारणा बनी कि सरकार को मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए समुचित कदम उठाना पड़ सकता है, जिसका बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके चलते आज मुनाफा वसूली की प्रवृत्ति एशियाई निवेशकों में दिखी है। हांगकांग का हैंग सेंग बिकवाली के दबाव में 1.1% लुढ़क गया। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.9% घाटे में रहा। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.2% की गिरावट हुई। उधर निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से निवेशकों की बिकवाली से दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.4% नीचे आ गया। हालांकि खरीदारी का असर जापान में देखने को मिला और जापान का निक्की 225 सूचकांक 0.2% लाभ में रहा। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो हालांकि बाजार में आज मिला जुला रुख है, लेकिन साप्ताहिक आधार पर पिछले 1 साल के दौरान लगातार बढ़त के साथ ये कारोबारी सप्ताह समाप्त होगा, ऐसे आसार हैं। ताजा समाचार मिलने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.5% नीचे चल रहा था। जर्मनी के डेक्स में 0.2% की गिरावट थी। उधर फ्रांस का CAC 40 0.1% ऊपर चल रहा था। Moving on to the US market, the S&P 500 hit a record high yesterday as Treasury yields fell following softer than anticipated labor market data and helped lift technology and other growth stocks. The softer data helped yields on the benchmark 10-year US Treasury note fell as low as 1.628% for a second straight day as it continues to back away from a 14-month high of 1.776% hit in late March. The Dow Jones Industrial Average gained 0.2%. The S&P 500 added 0.4%, while the Nasdaq Composite Index rose more than 1%. And now looking at the oil market in intraday trade, Brent was trading around $62.90 per barrel, while WTI crude prices were around $59.40 per barrel. चलिए सर्राफा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का मूल्य 140 रुपए घटा 46,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी 580 रुपए लुढ़ककर 66,920 रुपए प्रति किलो पर आई। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से पुनीत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट के रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार में भी बिकवाली तेज। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों नीचे आए। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में दोपहर कारोबार में रुपया कमजोर होकर 74 रुपए 80 पैसे के स्तर पर आया और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का मूल्य 46,700 रुपए प्रति 10 ग्राम तक फिसला। And that's all in this edition of Money Matters for now. Goodbye.